السلام علیکم پیارے ناظرین ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب بڑائچ آفیشیل اور میں مطلوب بڑائچ آپ سے مخاطب ہوں جناب۔ بے شمار واقعات حالات پوری دنیا کے اس وقت یوں تو ڈگرگوں ہیں۔ میرا مطلب ہے سیاسی حالات، اگر آپ حالات کا اندازہ لگائیں تو وہ اسرائیل سے لے کے ایران سے فلسطین، حماس سے لبنان، اور پھر مشرق وسطیٰ کے تمام دیگر ممالک یعنی لبنان، عراق، ایران، یمن اور ایران سمیت ترکی سمیت خود پاکستان بھی جنگ میں اس وقت مصروف ہے۔ تو حالات تو کہیں بھی پرامن بہتر نہیں ہے۔ ہم مسائل ممالک کو دیکھ لیں اور اس کے بعد اس سے آگے چلے جائیں، یوکرین اور رشیا کی جنگ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ مسلسل اور لمبا چوڑا پھڈا، نہ ختم ہونے والا پھڈا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اسرائیل امریکہ کے بغیر جی نہیں سکتا اور امریکہ اسرائیل کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو نہ یہ جنگ ختم ہونی ہے، نہ یہ اس کا نتیجہ نکلنا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو مارتے جائیں گے، مسلمان مار کھاتے جائیں گے، پھر اٹھ کے مار کھا کے بھی اٹھ کے کہیں گے اب کے مار سالے، اب کے مار سالے۔ تو وہ کام اسی طرح چلتا رہنا ہے۔ بچے شہید ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہنے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی رہنی ہیں، سہاگ اجاڑتی رہیں گی۔ بس یہ زمانہ چلانے کے لیے، سسٹم چلانے کے لیے، شاید یہ وہ کہتے ہیں کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ہزاروں ستاروں کا خون کر کے شاید ایک سحر پیدا ہوتی ہے۔ تو پیدا ہو لینے دے دی، چلیں اس کو بھی اللہ کرے سمجھ آ جائے عالم اسلام کو۔ ہم تو پاکستان کی بات کریں گے آج۔ پاکستان میں میاں صاحب واپس آئے نے، وہ بڑے سال بعد رہ کے پلیٹس گھٹ ہو گئے سن، اور پلیٹس گھٹ تو ہوئے تے جناب میاں صاحب انسانی ہمدردیاں ان کی اپنی، اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، اپنی کیبنٹ سے ہی بڑے وزراء، بڑے 4-5 وزراء کے تو میں نام گنا سکتا ہوں، وہ تو جناب ان کو دورے پڑ گئے۔ وہ نہیں ہمیں تو جناب اب ان میں سے آدھے وزراء جن کو دورے پڑے تھے، ان کی پلیٹس کم ہونے کی وجہ سے شاہ محمود قریشی سمیت وہ سارے اندر کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نیکی کا بدلہ جزا وصول کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور باقی جو بچے، باقی جناب یہ حالات ہیں کہ میاں صاحب واپس آ گئے۔ کیا حالات ہوئے اس ساری تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آگے کا بھی تو آپ کو بتانا ہے نا۔ تو جناب میاں صاحب واپس آئے، ایئرپورٹ پہ فنگر پرنٹ ہو گئے، ایئرپورٹ پہ ناظرہ پہنچ گئی، اور نہیں پہنچ گیا، اچھا تو وہ جناب ان کے فنگر پرنٹ سارے ٹھیک ہو گئے۔ پھر وہ آپ لاہور میں کبوتر بھی دیکھا نا آپ کیسا اڑا کبوتر جا جا جا، پہلے پیار کی پہلی چٹھی ساجن کو دیا۔ تو وہ جناب کبوتر کیسے اڑا جناب، آپ نے دیکھا، وہ ملاحظہ فرمائیے۔ تو وہ جناب کبوتر بھی اڑا، کبوتر اڑنے کے بعد میاں صاحب الیکشن بھی لڑا۔ ایک پارٹی کے ہاتھ پاؤں پیچھے باندھ دیے گئے، آگے بھی نہیں پیچھے باندھ دیے گئے، نشان نہیں ملا، پارٹی نہیں ملی، انتخابی نشان نہیں ملے، گاجر مولی چاقو ڈھول کی کھیرے پہ الیکشن لڑ کے پھر بھی میاں صاحب کو لاہور سے بھی مار پڑی، میاں صاحب کو دماد کے گاؤں سے بھی، شہر سے بھی مار پڑی۔ بیچارے میاں صاحب پٹ کے رہ گئے۔ کیوں آیا تھا روتے سے اس وقت کو جب مجھے واپس لایا گیا، جب یہ پھر میاں صاحب کو صاف پتہ چل گیا وڈے میاں آیا تو چھوٹا میاں تیرے نال ہاتھ کر گیا۔ وہ چھوٹا میاں بڑا تیز آدمی، اس معاملے میں ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ، ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ،
हुकूमत कैसी करता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, इसको छोड़ें। मियाँ दियाँ आनियाँ जानियाँ देखो क्या, ऐसे तो कोई ऐसे लगता है कद इतना ही था या जितना हिटलर का था। तो वो जब हिटलर की तरह ऐसे ऐसे बड़े तमाशे करते हैं, वो तमाशा मियाँ साहब से भी कर गया छोटा भाई। अब उनको समझ आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। खैर बादल नख्वास्ता लाहौर पे, तख्त लाहौर पे इत्तफाक करना पड़ा और ख़ुद भी छोटी मोटी अपनी बेटी की वज़ारत आला से, उसी कैबिनेट से एक मशावरत मशीर और एडवाइज़र बन के ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने लगे और ख़ुद को तसल्ली देने लगे कि शायद मेरी रिटायरमेंट का वक्त आ गया। बात रिटायरमेंट पे ही मौकूफ़ होती, यही ख़त्म हो जाती तो शायद कोई बात ना थी। लेकिन बात तो इससे बढ़ के आगे थी जनाब। बात तो ये थी, एक बंदे के अंदर एक मजाज होता है, एक डीएनए होता है, एक बंदे की तासीर होती है, एक उसके अंदर जो वल्वा था वो ना मरने वाला था मियाँ साहब के अंदर। यकीन करें, एक इनकलाबी वल्वला। आपने गुजरांवाला के उस स्टेडियम में, म्यूनसिपल स्टेडियम में वो सुने देखें गुजरांवाला में मियाँ साहब ने क्या कहा। जनरल कंवर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको दे। और फिर आपने उनके जनाब बहुत ही सियाने, बहुत ही उन्होंने किचन कैबिनेट जिसे कहते हैं, मियाँ साहब की किचन कैबिनेट भी अब बिखर गई है। कभी चौधरी नसार होते थे, कभी जनाब राना नज़ीर थे गुजरांवाला से कामों की से, कभी जनाब उनकी किचन में शाह खान अब्बासी होते थे। अब ये तीनों नाम नहीं है। और चौथा नाम ख्वाजा आसिफ का था, राना तनवीर, और ये लोग। ख्वाजा आसिफ साहब भी जनाब खोल के अब सामने आ गए। जब उनकी वो कहते हैं दुम पे पाँव आया किसी का, तो फिर वो उनकी पाँव क्या आना था यार, सच्ची बात करते हैं, आज सच्चा दिन है। उनकी पाँव पे जो फौजी बूट आया, तो वो जनाब सारा कुछ भूल के उन्होंने वो पुर्तगाल का भी मसला जाग पड़ा। हमें तो पता था, हमें बेल्जियम का पता था, हमें ऑस्ट्रेलिया का पता था, हमें फिजी का पता था, न्यूजीलैंड का पता था, हमें कनाडा का पता था, हमें सरे महल और एवनफील्ड लंदन का पता था, हमें अज़रबैजान का भी पता है, शायद आपको भी पता है। भाई आइंदा जो मुकदमात बनेंगे, FIR कटे जाएंगी, दौलत जिधर छुपाने की आपको खबरें मिलेगी। आज ही से, आज डेट देख लिया क्या है, आज से मेरी बात नोट कर लें, वो अज़रबैजान होगा जिधर सारा माल अब जमा हो रहा है। तो जनाब अब जनरल साहब जो पहले वो जैसे कहते हैं ना कि फलाने पिंड एक डैन आउंदी है, और डैन हर रोज एक बंदा चुक के लै जाती तो खा जाती, उसको चीड़ पार करके खा जाती है। अब लोग मुश्तरका पहरेदारी भी देते हैं, पहरा भी लगाते हैं और सारा कुछ, लेकिन वो डैन किसी ना किसी तरीके से हर रोज एक बंदा चुक के ले जाती है। तो मियाँ साहब भी जनाब जब भी इनको मौका मिलता है, इनके दौरे हुकूमत में या इनके टेन्योर में, मियाँ साहब हों, छोटे मियाँ हों, बड़े मियाँ हों, मियाँ तो मियाँ होता है। वो मेरे प्यारे दोस्त जनाब रसानी साहब ने, वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब ने कहा, क्या खूब कहा था, तो डिग्री होती है। तो इस तरह मियाँ साहब का भी वो उठा लेते हैं जनाब। वो जनाब जनरल साहब को जब भी आते हैं, एक दो जनरल का लुकमा तो समझ के ना ऐसे वो समझिए शब देग पकी हुई है, बहुत टेस्टी। खाने के तो शौकीन है, खाबेयों के भी शौकीन है, खाबे भी जनाब
ਖਾਬੇ ਖਾ ਕੇ ਖਾਬੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਾਬੇ ਲੱਥ ਗਏ ਨੇ, एडे एडे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਬੇ ਮਾਰੇ ਨੇ कि खाबे खाबे हो गई, जिनके हेलीकॉप्टरों पे नाश्ते जाते हों मरी, और जनाब मुख्तलिफ शहरों में उनकी पसंदीदा दुकानें हों, रखा हो, कोई मनीरा हो, ये हो, शीदा हो, फलां हो, वो तो जनाब उनके उधर से हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं नाश्ते और डिनर और लंच उनके मियाँ साहब की। वो जनाब वो मियाँ साहब पहले जनरल जनरल ज़ियाउल हक उनके रूहानी उस्ताद थे। जनरल ज़ियाउल हक मरहूम मगफूर फरमाया करते थे कि ये मेरे बेटा है, और मसूफ उन्हें अपने अब्बा जी कहा करते थे कि ये मेरे ना सिर्फ सियासी बाप हैं बल्कि मेरी जहनी बाप है। मेरे सारे पाकिस्तान ने सुने ये अल्फाज। तो वो जनाब पहले तो अपने अब्बा जी को खा गए, और अब्बा जी की औलाद अभी तक रो रही है, मतलब गोदों में जाके वो अपने अब्बा जी लोगों की गोदों में बैठ के तलाश कर रहे हैं। कभी इमरान के पास आ जाते हैं, कभी काफ के पास चले जाते हैं, कभी स्टैब्लिशमेंट के पास चले जाते हैं। वैसे तो उनकी असल गोद तो स्टैब्लिशमेंट ही बनती है। कभी मियाँ साहब के साथ मियाँ साहब ने धत्कार दिया कि जा यार हुण अब्बा जी टुर गए, तू इधर लम्मा पीछे पै गया, साल 2 साल तो चलो ठीक हुंदा है, हुण तू साडी कुर्सी के पीछे पै गया, तेरियां अखां किले होर ने, नगाहें कहीं और निशाना कहीं। इस किस्म की मियाँ साहब को ना सारी गेम समझ में आ गई। तो वो जनाब ज़ियाउल हक साहब को खाने के बाद फिर वो असलम बेग को खा गए, फिर वो जनरल जंजुआ को खा गए, जनरल करामत को खा गए, फिर जनरल कियानी को खा गए, फिर वहीद काकड़ को खा गए, फिर जनरल मुशर्रफ को खा गए। पर आगे पीछे करके अगर नाम आगे पीछे हो जाए तो महसूस नहीं करना, क्योंकि वो बुरकी भी तो लगातारी से नहीं ना खाते, जब मौका मिलता है तब खाते हैं, तब लुकमा खाते हैं ना, इस तरह मतलब सोचते हैं। तो जनाब मियाँ साहब को जब भी भूख लगती है, जब भी उनका मुंह खोलता है, जब भी उनके अंदर का शेर जागता है, जब भी इनकलाब एक सोया हुआ इनकलाबी जागता है, जब वो इंगलाई लेता है, जब वो ऐसे उठता है, तो वो उठते ही सबसे पहले मुंह खोलते हैं और एक अंदर छिपा सलाद तो डायरेक्ट उनके मुंह में चला जाता है। वो हजम कर डकार भी मारते हैं, फिर वो जैसे माजे दे पाए खादे होंगे ने, इस तरह डकार मार के छिपा सलाद हजम। जब ये तो उनके फिर वो सरेआम पुकारते हैं, जैसे मैं भी गुजरांवाला की बात कर रहे थे, सरेआम पुकारते हैं ये जी हमारे दरमियान लकीर खींची की है। कभी जनाब वो भारत के नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए उनके घर बिन बुलाए मेहमान आ जाता है। पूरे पाकिस्तान को पता नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की फजाइया को पता नहीं। तो जनाब लाहौर में उनके घर मंगनियों पे आ जाते हैं कि क्या ये पता नहीं की कहते वो की करना आते ने, उस तरह लैके आते ने मोदी साहब उत्थे कोई सुनता करना आते ने। पर ऐसे तो उनके घर सरबराह ममलकत का आना जाना है। कभी मरी उनके घर में वो जो है इंडियन रॉ का चीफ आ जाता है, कभी कोई आ जाता है उनके, और बिन मिलाए बगैर वीजे उनको वीजे की जरूरत है। वो तो पाकिस्तान को अपना एक छोटा मसली समझते हैं, इसलिए मसली मुल्क का वीजा लाने की जरूरत है। कभी किसी पाकिस्तानी ने भी पिछले कुछ 14 साल तो मोदी उत्थे इस टाइम आया, इकतदार 11वां साल जाता पाया, किसी पाकिस्तानी नूं वीजा मिले, किसी एक्टर नूं, किसी प्लेयर नूं, किसी खिलाड़ी नूं, किसी सियासतदान नूं मार्फाए चंद मिले होंगे तो सफारती वीजे मिले होंगे, जो मजबूरी है। तो वो उन्हें भी हमें यानी वो अपने मुल्क में हमारा साया, हमारे कदम बर्दाश्त नहीं करते और ख़ुद जनाब वीज़ों के बगैर पाकिस्तान में तशरीफ़ लाते हैं और मियाँ साहब उनको वेलकम करते हैं। तो ऐसे फिर कहते हैं हमारे दरमियान असी भरावां साढ़े दरमियान लकीर खिंच दी गई है। हाँ लकीर तो हुण खिंची है छोटे मियाँ तो वड्डे मियाँ के दरमियान, इनू मिटा के वेखो मियाँ साहब,
लेकिन लगता है मियाँ साहब का इनकलाबी आजकल फिर थोड़ा सा जागा हुआ है। अभी सुना ठंडी पहाड़ियों में बैठ के, ठंडे कमरों में बैठ के मियाँ साहब ने एक बहाने से कि 3 सीटों पे खाली हुई हैं, उन पे ज़िमनी इलेक्शन है जनाब, फिर एक ड्रामा उधर किया, सबको हैरान कर दिया, और एक जज्बा दिए कि मैं आ रहा हूँ और एक नई फिल्म लॉन्च हो रही है, नए हदायतकार, नए अदाकार, नए उसमें सारी हीरोइन भी, चलो हीरोइन तो फिर सर्जरी सुरजी स्विट्जरलैंड तो करा के ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਡੰਟ ਸ਼ੰਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਵਟਾ ਲਓ, पुराने भांडे कली करा लो, तो कली शली करा करो के तो उन्होंने एक चीज़ तैयार तो की हुई है, लेकिन वो बिक नहीं रही वो चीज़। बड़ी कोशिश, खुद भी बड़ी कोशिश, ये आपने ऐसा भी कभी देखा कि प्रोडक्ट खुद भी अपनी जो है वो अपनी मार्केटिंग करे, अपनी मशहूरी करे, लेकिन ऐसी मियाँ साहब की प्रोडक्ट ऐसी है कि वो अपनी मशहूरी खुद करती है, अपनी मार्केटिंग आप अपना टिकटॉक माशाल्लाह वो खुद संभालती है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ ज़रूरत क्या है भाई, जब ऊपर इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में मसूफ़ा बैठी हुई हैं। और मियाँ साहब ने तो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब वो मैं पहले की तरह ख्वाजा आसफ से बयान दिलवाया, वो पुर्तगाल वाला वो स्टेब, उसको ब्यूरोक्रेसी को गालियाँ, स्टैब्लिशमेंट को गालियाँ, ये वो ज़रा पानी में तलातम, प्याली में तलातम खड़ा करने की कोशिश की मियाँ साहब ने। और हैं तो मास्टर हैं, तो फिर ऐसे ही तो नहीं ना एक पट्ठी तो पट्ठे बन गए, ऐसे ही तो नहीं होता। बंदे के पास फन होना चाहिए। एक पट्ठी लाए थे साथ, आज पूरे पाकिस्तान के मालिक बन के जनाब, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन के मालिक बन के पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान, वरना उसकी जायदाद तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं है। हाँ अच्छा, तो वो जनाब अब फिर से वो पाने भांडे कली करारो, तो वो जनाब ले आए हैं ख्वाजा साहब को। ख्वाजा साहब ने बाउंगी मार दी आते ही, वो पता नहीं इस्लामाबाद में रह रहे के गधे का गोश्त खा के ख्वाजा साहब के कैसी जुलती मारी है उन्होंने, कि एक जुलती से पूरी जनाब जो गवर्नमेंट ही उल्ट जाने के करीब क्या है, उल्ट गई है। और जनाब फिर मियाँ साहब ने अपनी उस मीटिंग में, ठंडे कमरे वाली मीटिंग में, साद रफ़ीक, जवेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर को कहा कि भाई कोई फूका शूका पढ़ो अपने टैरां च, और कोई लक शक सीधा करो, असी फिर उठना है, क्योंकि मुझे हर सूरत में अपनी दोस्तरे नेक अख्तर को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाकर इस मुल्क के इक़्तिदार से उसको तोहफे में देना है। बाप हूँ, गरीब बाप हूँ, और दे भी क्या सकता हूँ अपनी बेटी को। मैंने इसकी शादी इसकी मर्जी की करवाई, मैंने सब कुछ किया इसके लिए, लेकिन बेटी है ना, बेटी तो बाप के घर से लेती है, बेटी और कहाँ से लेगी यार। बेटी का भी तो आखिर हक होता है। तो मियाँ साहब ने जनाब उसे इनको कहा कि उठो उठो मेरी कौम के सिपाहियों, उठो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे सज्जनों, मेरे बेलियों, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गली महल्ले ਦੇ काउंसलर नहीं हो बन सकते, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फैडरल मिनिस्टर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वजीर दफा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वजीर खजाना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ की बना देता, वजीर दाखिला, पता नहीं की नए वजीर आजम ते मैं तुसी मेरे से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो भी अब लोग, जवेद लतीफ़ जैसे लोग, साद रफ़ीक जैसे लोग, राना तनवीर जैसे लोग अब, और वो तो सियाने हो ही गया। चौधरी नौशाद तो खैर वो जैसे बताया वो किचन कैबिनेट तो बेचारी अब भाग गई है इनका किचन देख के, इनकी किचन की हालत देख के, किस किचन के साथ क्या किचनाई हो रही है, वो वैसे ही पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। तो जनाब अब मियाँ साहब
کہ جو میں نے جن کا ذکر کر رہا یہ پٹھے جو ہیں یہ یا تو بوڑھے ہو گئے ہیں یا پھر پٹھے کمزور ہو گئے ہیں تے کچھ ہور بھی پٹھے ہوندے نے پتہ نہیں او تے میاں صاحب دے کول کوئی بڑے لگے پھردے نے لاہور تے پنڈی تے اگے پیچھے تے ساری جگہ تے او پٹھے تے نال لندن بھی ہوندے نے تے او سارا کچھ ہے لیکن ہن گل ہے کہ میاں صاحب کا بنے گا کیا یہ بیل مینڈیٹ پہ چلے گی کہ نہیں بھائی مجھے تو نہیں چلتی نظر آتی مجھے تو اس میں کوئی دم ہم نظر نہیں آتا مجھے تو اس میں کوئی آپ صاف پوچھے نا تو میری طرفوں تو نہ ہی ہے اگوں تہاڈی مرضی تسی حساب کر لو مجھے اب لگتا ہے کہ میاں صاحب کو اس دفعہ نامراد ناکام واپس جانا پڑے گا دیکھتے رہیے مطلوب ڈیچ آفیشل اسے لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میاں صاحب تک بھی یہ بات پہنچے کہ انہوں لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے محلے دے لوگوں کو گھر دے لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے